of an unstable particle. तो ये है क्या? Basically it is just that there is, let's suppose, some kind of a radioactive particle which suddenly decays into two separate particles. ठीक है? So let's suppose तुम्हारे पास initially एक atom है या फिर subatomic particle है, कोई भी है, ठीक है, and then it suddenly decays into, let's suppose, two separate particles. So it becomes a particle, let's suppose B, and becomes a particle, let's suppose C. All right. So I initially had a particle, let's suppose A, which became B and C, and whatever energy is released in this reaction is given off as kinetic energy of the daughter nucleus or the daughter particle. So let's suppose initially A was at rest. Initially A was at rest, but B and C are moving. See? And that basically energy of the reaction comes out from the rest mass energies of the this reaction. So whatever it is, that is not our concern at this moment. What is our concern is that I want to find out, let's suppose मेरे को जो A है, A का जो मुझे मास पता है और मुझे ये भी पता है जो A रेस्ट पे है, ठीक है, और let's suppose B और C में से मुझे किसी एक पार्टिकल का मास पता है, ठीक है, अब दूसरे पार्टिकल का मुझे एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, अगर मेरे पास दो पार्टिकल्स है, एक का मुझे मोमेंटम पता है, दूसरे का मुझे मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो यूजुअली नॉर्मल न्यूटन मैकेनिक्स में हम just we add the momentum vectors, but here we have to add the 4 momentum vectors. All right, so let's suppose we have this reaction, A becomes B plus C. So let's suppose let us define their quantities. So if you look at mass, let's suppose the rest mass of A is Ma, okay, rest mass of B is Mb, rest mass of C is Mc. All right, it is their rest mass, and they will have momentums associated with it because of their motion. So let us write down this equation. So let's suppose, so 4 vector momentum of A, 4 vector momentum of A क्या होगा? A जो है इनिशियली रेस्ट पे है, राइट? अगर रेस्ट पे है तो मोमेंटम वेक्टर का जो टाइम कंपोनेंट क्या है बेटा? मोमेंटम वेक्टर का टाइम कंपोनेंट क्या है? E by C ना? So energy of the particle A upon C. और क्योंकि जो A है वो रेस्ट पे है तो उसका जो मोमेंटम कंपोनेंट है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में वो 0 होगा, ठीक है? नाउ फॉर B के लिए जो होगा, B will also have some energy of the particle EB upon C, लेकिन B is moving, right? B जो है मूव कर रहा है, तो उसका जो मोमेंटम कंपोनेंट्स होगा, स्पेशल कंपोनेंट्स, दैट विल बी, लेट्स सपोज PB1, PB2, PB3. So basically this is nothing but PA naught, right? Time component. Now similarly PC के लिए हम निकालते हैं, so this is EC upon C, so this is PC1, PC2, PC3. Okay, तो हमें जो है ये पता है. Now we are interested in figuring out, let's suppose उनमें से अगर एक पार्टिकल के जो फिजिकल क्वांटिटीज हमें पता है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन दूसरे के फिजिकल क्वांटिटीज हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? हाउ कैन वी अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू गेट सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दिस सिस्टम? ठीक है, सो व्हाट विल वी डू इज वी विल सिंपली अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ फोर मोमेंटम. So the conservation of four momentum simply tells us is that the momentum of A is equal to the momentum of B plus C. So P mu A is equal to P P plus P C. That's it. This is conservation of four momentum here. ये है तुम्हारा conservation of four
momentum. We start from here. Okay, we start from here. But how to use them? So let's write down this in terms of, let's suppose हमें पता है that PA जो है is known, let's suppose जो first particle है, ठीक है, and let's suppose हमें PB भी पता है. Alright, we are interested in PC. The C particle जो है वो unknown है, उसके बारे में हमें find करना है. We can rewrite this whole equation in terms of PC mu is equal to PA mu minus PB. Okay, now what to do with this equation? What we can do is we can square it. Okay, मैं तुमको दो अलग-अलग method दिखाता हूँ so that you understand the consistency of what we are doing with this operation. So whenever you have a momentum equation like this, what you can do is, इसका मतलब क्या है? That both these left hand side is equal to right hand side. इसका मतलब ये है the magnitude of this momentum vector is equal to the magnitude of this momentum vector. दोनों मोमेंटम वेक्टर जो है 4 वेक्टर है, दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है. मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं बाय टेकिंग द इनर प्रोडक्ट. ओके, सो P mu C, P mu C, right? This is the inner product of left hand side, and the inner product of right hand side is P mu A minus P mu B is equal to P mu A minus P mu B. Okay, so we have basically done an inner product. तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ ही इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ ही इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, एंड देन आई एंड अप गेटिंग बेसिकली द मैग्नीट्यूड of these two vectors of left hand side and right hand side respectively. So ये क्या होगा? This is nothing but the length of this vector or the norm of this vector, and यहाँ पे जो आएगा मेरे पास P mu A, अगर मैं इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, if I multiply the individual terms, so P mu A, ठीक है, और एक दूसरा क्वांटिटी होगा मेरे पास प्लस P mu B, ठीक है, माइनस P mu A, P mu B माइनस P mu B, P mu A. अब मुझे लग रहा है यहाँ पे तो जो है काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, बट आई एम गोइंग टू शो यू एन इजियर मेथड. But to understand the easier method, first you need to know that these ideas are consistent. So मैंने सिंपली मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड में इनर प्रोडक्ट ले लिया, एंड आई एंड अप गेटिंग बेसिकली दिस P mu C is equal to P mu A plus P mu B, P mu. और ये दोनों जो टर्म है ना, ये दोनों जो टर्म है, दिस इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज जो कंपोनेंट्स है वो सम हो रहा है, सम के ऐड हो रहा है. व्हाट हैपेंस व्हेन 3 वेक्टर में जो है तुम डॉट प्रोडक्ट लेते हो, इट बेसिकली गिव्स यू अ स्केलर क्वांटिटी ax plus bx plus ay plus by plus az plus bz, ठीक है. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू अ सिमिलर काइंड ऑफ एन इनर प्रोडक्ट विद अ 4 वेक्टर, you end up getting minus a naught square, sorry, not a naught square, minus a naught b naught minus a naught b naught plus a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. The dot product of a normal vector and the dot product of a 4 vector में एक ही डिफरेंस है कि सबसे पहले तो नॉर्मल वेक्टर में 3 टर्म्स आते हैं, उनका समेशन होता है, 4 वेक्टर में 4 टर्म्स आते हैं, उनका समेशन होता है. The only difference is that यहाँ पे जो टाइम कंपोनेंट है, which is basically a product of the time components of each vector, उसके सामने एक नेगेटिव साइन आता है, बस और कुछ नहीं, उसके सामने एक नेगेटिव साइन आता है. सो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, B mu A mu, ऐसे भी लिखूं ना, तो this is also the same, sorry, हाँ, this is also the same thing. This is also can be written as a naught b naught plus a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3, right? So what I'm saying is that a mu b mu is equal to this thing.
ठीक है, जिस तरह से हम नॉर्मल वेक्टर्स का बोलते हैं these are you know when you change the order of the terms, it does not change necessarily the value. So I can write here this as 2 p mu a p mu b. That's it. So these quantities are basically, the value of these quantities is nothing but a scalar quantity and they're equal to each other. Alright, so if they're equal to each other, I finally get this term. Now यहाँ पे जो है, because there are so many terms involved, what I can do is I can say that this quantity is nothing but, for the sake of simplicity of calculation, okay, this quantity is nothing but P C जो है, जो four momentum of this what we can say as C particle, उसका जो है magnitude square है, right? And this is nothing but the four momentum of, मैं इसको अगर म्यू नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, म्यू लिख भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. It's nothing but the magnitude of the particles, sorry, ये particle A है ना, हाँ, particle A, ठीक है, and this is nothing but the magnitude square of particle B, ठीक है, and this is of course minus P mu A P mu B. Okay, now what why I'm going to say is that what I can do is basically, यहाँ पे जो मैंने inner product लिया है, ठीक है, एक simple तरीका है इसको करने का. Instead of taking an inner product, I can just simply take a square of this particular equation. If I square this equation, both will be equivalent, okay, if we maintain a certain set of rules. Square the equation, both sides. So if I square it, I simply end up getting P C mu whole square plus is equal to P A mu whole square plus P B mu whole square minus 2 P mu A P mu B. Alright, now I can say that both these two are equivalent for the sake of calculation, okay? For the sake of calculation, as long as I consider this term, to be the magnitude of the four vector momentum of particle C, I consider this term as the magnitude of the four momentum vector of particle A, magnitude of the four momentum vector of particle B, and in this particular quantity, I am basically going to find the what you can say inner product of A and B. So inner product of A and B मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म आ जाएगा जब भी टाइम कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा. दैट्स ऑल. ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पे इतना लंबा कुछ लिखा है इनर प्रोडक्ट लेके, सो आई कैन स्ट्रेट अवे डू अ स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन. अगर आप ऐसे भी करेंगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, एज लॉन्ग एज यू कीप इन माइंड दैट जो भी मैंने स्क्वायर किया है किसी भी फोर वेक्टर मोमेंटम का, दैट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर वेक्टर मोमेंटम, एंड द मोमेंट आई डू अ प्रोडक्ट, दिस इज नथिंग बट द इनर प्रोडक्ट ऑफ दोस टू वेक्टर्स. सो इनर प्रोडक्ट होने का मतलब ये है कि you will do a summation of all the terms involving the product of components, है ना? Product of components basically PA naught PB naught minus plus PA1 PB1 plus PA2 PB2 plus PA3 PB3, except कि बस put a negative sign in front of जो है time component. That's it. So why I am saying this is that अगर आप जो है ये particular method follow करते हैं तो this is a better method because this is actually what is happening. जो inner product ले रहे हैं हम magnitude find out करें, this is what is happening. So if you want to maintain the consistency of the logic of whatever it is that we are following, then it is better to follow this particular method. But if you want to do a shortcut,
कि भाई मेरे को जो कैलकुलेशंस को थोड़ा सा शॉर्ट करना है, इतना लंबा नहीं जाना, तो यू कैन डायरेक्टली स्क्वायर अप दिस इक्वेशन। बस आप अपने माइंड में इस चीज को ध्यान में रखना कि ये जो है दीज आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल फोर मोमेंटम वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड होने का मतलब है द नॉर्मल लिनियर प्रोडक्ट, एंड दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी में जो टर्म्स आएंगी टाइम कंपोनेंट के आगे हमेशा एक नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए तुमको ये बता रहा हूं क्योंकि मैं आइदर ये पर्टिकुलर नंबर 1 जो है ये मेथड भी फॉलो कर सकता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मैंने अपने नोट्स में यही मेथड ये मेथड फॉलो नहीं किया है, और मैं ये मेथड भी फॉलो कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने अपने नोट्स में जो है यही मेथड फॉलो किया है, एंड द रीजन मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ बिकॉज कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपने स्क्वायर करके फिर स्क्वायर को इस तरह से कैसे लिख दिया है, ठीक है। मैंने सिर्फ शॉर्टकट अप्लाई किया और कुछ नहीं है। अगर लॉजिकली कंसिस्टेंट मैनर में आपको जाना है तो दिस इज द राइट मेथड, ओके। अगर लॉजिकली कंसिस्टेंट मैनर में आपको जाना है, दिस इज द राइट मेथड फॉर डेरिवेशन। अगर आपको शॉर्टकट करना है तो दिस इज ओके, दिस इज फाइन, नो इश्यूज। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो टर्म्स है ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो टर्म है इसमें हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। ये तो प्रॉब्लम ये है कि यूजुअली जो भी हम डेफिनेशंस फॉलो करते हैं उसमें क्या है कि ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है इसमें जो है ये कॉन्ट्रावेरिएंट टर्म्स है ना, तो कॉन्ट्रावेरिएंट टर्म्स के सामने जो है टाइम कंपोनेंट के सामने माइनस वन आता नहीं है, इसलिए मैं बार बार इसको मेंशन कर रहा हूं। अगर आप इस शॉर्टकट को फॉलो करते भी हैं तो ये चीज ध्यान में रखना कि एक्चुअली ये जो है लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं है, बिकॉज कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर को जब हम एक दूसरे कॉन्ट्रावेरिएंट के साथ हम इस तरह से लेते हैं तो टाइम कंपोनेंट के सामने नेगेटिव -1 नहीं आता है। लेकिन मैं जब भी ये मेथड फॉलो करूंगा हमेशा आई पुट अप अ माइनस साइन। द रीजन इज दैट द एक्चुअल कंसिस्टेंट मेथड ऑफ डेरिवेशन इज दिस वन, ठीक है। सो इसलिए मैं इसको अभी से मेंशन करके दे रहा हूं, आई एम गोइंग टू यूज दिस मेथड फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सर आपने ऐसा क्यों किया, आई विल कम बैक हियर एंड आई विल एक्सप्लेन दैट दिस इज बेसिकली द सेम एज दिस, ओके। सो लेट्स गो बैक टू आवर प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम क्या था? हमारा प्रॉब्लम था ये पार्टिकल डीके। पार्टिकल डीके के बाद हमें कौन सा इक्वेशन मिला? हमें तो इक्वेशन मिला ये वाला, ठीक है। आई गॉट दिस इक्वेशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर व्हिच इज द सेम एज दिस इक्वेशन, नो इश्यूज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। सो P C mu square is equal to PA mu square plus PP mu square minus। तो यहाँ पे जो है दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग इट बिकॉज आई एम टेकिंग लिनियर प्रोडक्ट, बट यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा कि ये जो है बेसिकली दिख रहा है इस तरह से दिख रहा है एज इफ इट इज कॉन्ट्रावेरिएंट, बोथ द टर्म्स आर कॉन्ट्रावेरिएंट, बट दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू। सो इवन इफ यू डू फॉलो दिस मेथड, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज पुट अ नेगेटिव साइन सो एज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अ मिस्टेक। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2P mu A P mu B, ठीक है। Now the only thing that is remaining is basically to put up the values. So put up the values मतलब क्या? So first one is so this one and this one, ठीक है। So यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या होगा। So what is P A mu and P mu A, which is basically मैंने लिखा है P A mu square। ये क्या है? हमने कल जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर मोमेंटम वेक्टर ऑब्टेन किया था। क्या ऑब्टेन किया था? कल जो हमने ऑब्टेन किया था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर मोमेंटम माइनस m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर, है ना। यहाँ पे कल हमने ऑब्टेन किया था, हाँ ऑब्टेन किया है, हाँ ये ऑब्टेन किया था, याद है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कल भी बताया था कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है दिस इज माइनस m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी काइंड ऑफ गिवन फोर मोमेंटम। कोई भी पार्टिकल होगा, पार्टिकल A, ठीक है, तो उसका जो फोर मोमेंटम होगा P mu A, it is always going to be ma as long as ma is the rest mass, ma square minus ma square c square। इस चीज को याद में रखना है जब भी रिलेटिविस्टिक एनालिसिस करोगे, ये चीज याद रखना है, इसको भूलना मत, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो लेट्स यूज दिस इन आवर दिस थिंग। सो इसको अगर यहाँ पे मैं यूज करूंगा तो ये क्या आएगा? माइनस, बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ma स्क्वायर c स्क्वायर, राइट। माइनस ma स्क्वायर c स्क्वायर आ गया। सिमिलरली
पी बी म्यू स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस एम बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एम पी सी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा माइनस एम सी स्क्वायर सी स्क्वायर, दैट्स इट। सो आई एम गोइंग टू यूज दीज हियर, so let's use this here. This is nothing but minus mc square c square is equal to ma square c square minus mb square c square minus, अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जो है pa और pb का इनर प्रोडक्ट है ना, pa जो है ये है तुम्हारा, सॉरी pa जो है ये है तुम्हारा, ठीक है, और pb यहाँ पे, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, लिखने के बाद इसको मैं करता हूँ, so ea by c 0 0 0 और eb by c pb1 pb2 pb3 है ना। सो ये हो गया तुम्हारा 2, यहाँ पे आ गया ई ए अपॉन सी 0 0 0, बेसिकली इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस, एंड ई बी अपॉन सी पी बी 1 पी बी 2 पी बी 3। ऐसा इसलिए बिकॉज जो पार्टिकल ए है वो इनिशियली रेस्ट पे था, लेकिन जो पार्टिकल बी है वो मूविंग पार्टिकल है। तो लेट्स कम बैक, माइनस एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2। अब जो है ये जो चीज है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टर्म्स, इट्स लाइक अ डॉट प्रोडक्ट। द ओनली डिफरेंस इज दैट टाइम कंपोनेंट के सामने जो है तुम्हारा ये एक नेगेटिव साइन आता है और कुछ नहीं है। तो उस चीज को अगर तुम ध्यान में रखोगे कि जो है टाइम कंपोनेंट के सामने हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये जो ट्रिक है इसको थोड़ा दिमाग में रखना कि द मोमेंट आई मल्टीप्लाई, सॉरी द मोमेंट आई डू दिस थिंग मल्टीप्लाई, लेट्स सपोज पी ए विद पी बी, या ऐसे कोई भी दो अलग अलग फॉर मोमेंटम वेक्टर है, तो उनकी कंपोनेंट्स को, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, बस टाइम कंपोनेंट के सामने एक नेगेटिव टर्म रखना, दैट्स ऑल। इस चीज को फॉलो करोगे कोई दिक्कत नहीं, बाकी कुछ मालूम हो या ना हो, ये इनिशियल जो भी हमने डिस्कस किया वो सब मालूम हो या ना हो, सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखना, तो फिर यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशंस एटलीस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टाइम कंपोनेंट है ई ए अपॉन सी, उसके सामने एक नेगेटिव साइन लगा दिया, बस दैट्स ऑल, एंड ई बी बाई सी, दैट्स ऑल। और द रेस्ट है तो 0 इंटू पी बी 1, 0 इंटू पी बी 2, 0 इंटू पी बी 3। तो ये सब जो है नॉन नेगेटिव होगा, लेकिन क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा। एम सी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये क्या है, ये दे विल गेट एडेड ना, बिकॉज दिस इज अ इनर प्रोडक्ट। सो माइनस 2, ठीक है। अब माइनस माइनस ये सारा 0 हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, बचा तुम्हारे पास क्या, बचा तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर क्वांटिटी। सो माइनस माइनस बिकम प्लस, सो प्लस ई ए ई बी अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा ई ए ई बी अपॉन सी स्क्वायर। नाउ इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जो ई ए है वो हमें क्या है पता है, E A is nothing but the total energy of the particle A. So what is the total energy of the particle A? Because the particle is at rest. Particle का कोई मोशन है नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं, तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी हम लिख सकते हैं ma c square, where ma is the rest mass. ठीक है, so this is the energy of particle A. Because the particle is initially at rest, so I can write this as mc square c square is equal to minus ma square c square minus mb square c square plus 2 upon c square multiplied by ea is ma c square eb. So c square gets cancelled and you are left with let's suppose इन दो सारे टर्म्स को मैं एक साइड लेके आता हूँ, so 2ma EB is equal to MA square C square plus MB square C square minus MC square C square. So EB is equal to MA square plus MB square minus MC square C square upon 2MA. Let's suppose this is point number 1, which is easily obtained. लेकिन मैंने अभी यहाँ पे आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, that जो A है that is known, B है known, this is unknown. So we are interested in C, okay? So if we are interested in C, what we are going to do is
If you are interested in C, what we are going to do is we are going to say that the total energy, देखो कंजर्वेशन जो लॉज वैलिड रहता है उसमें से एक तो है फोर मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन. सो आई कैन आल्सो से EC इज इक्वल टू EA माइनस EB. ठीक है. EA हमें क्या है पता है, EA आई नो. ठीक है. EB हमें क्या है पता है, we are interested in finding EC. Now quite simple. So EC is equal to EA is nothing but MAC square minus EB is nothing but MA square C square plus MB square C square minus MC square C square divided by 2MA. Let's add both these two terms. So 2MA, तो ये बन गया 2MA square C square minus MA square C square plus MB square C square minus MC square C square. So finally the total energy of the third particle C comes out to be MA square plus MB square minus MC square. एक सेकेंड, ये तो माइनस हो जाएगा ना, ये यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा माइनस, ये हो गया तुम्हारा प्लस. MA स्क्वायर माइनस MB स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर अपॉन 2MA C square. This is the total energy of the final unknown particle. So A particle decays into B and decays into C. A is known, B is known, C is unknown. We can find it in this particular manner. ये जो energy है we can calculate using this 4 vector. So this is your entire derivation for finding out the energy of the third particle in a process where an unstable particle is decaying into 2 daughter particles. और ये normal